तो हम देखेंगे आइडिया अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर। कहते हैं जो डिसऑर्डर्स हैं, कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये दे आर इनहेरिटेड, ठीक है, दे हैव बीन प्रिवेलिंग इन द ह्यूमन सोसाइटी सिंस लॉन्ग, बहुत टाइम से ये हमारी सोसाइटी में है। नाउ कैसे, कहते हैं दिस वाज बेस्ड ऑन द हेरिटेबिलिटी ऑफ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन द फैमिली। जब मेंडल ने इसको डिस्कवर किया था, किसको, हाउ टू फाइंड आउट द एनालाइज द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द ट्रेट इन द ह्यूमन बीइंग्स, तब से उन्होंने देखा कि कंट्रोल क्रॉसेस जो हैं which can be performed in the pea plant and the other organism, they are not possible in case of the human beings. So study of family history about the inheritance of particular trait provide the alternative. So this analysis of the trait in the several generations of the family is known as the pedigree analysis, because here we, in the pedigree analysis, inheritance of the particular trait is represented in the family tree over generations. It is a very strong tool which is used to trace the inheritance of a specific trait, used to find out or provide the inheritance pattern of the abnormality or the disease. Clear? And for that special symbols are being used that we will do further. Now इसके अंदर जो सबसे important चीज जो है वो क्या है कि why, sorry, the important thing is why pedigree analysis, because Mendel has done the work on the pea plant, ठीक है. So if we want to create any trait or any mutation in the pea plant, it's very simple. Either we take the seeds and we do the irradiation of the seeds with the X-rays, and then we will put those seeds in the soil and then we will see the variation, ठीक है. Or if any variation or the any trait that we don't want in the pea plant or in the plants, then what is the option for them, for us, what can we do then? If the trait appeared is not desired, then what we will do? Simple, we will cut the plant, ठीक है. So here we can do, and one more thing, in the pea plant we can do control crosses. कंट्रोल क्रॉसेस समझ रहे हो? समझिए, ये दो प्लांट थे, इन प्लांट से मिलके एक प्लांट बनाया, इस प्लांट में हमने सेल्फिंग करवाई है, ठीक है. अब नाउ कंपेयर दिस विद द ह्यूमंस, मदर फादर बेबी, ठीक है. इस बेबी में हम सेल्फिंग करा सकते हैं किसी ट्रेट का पता करने के लिए? नहीं करा सकते. नाउ सी, द ट्रेट अपीयर्ड हेयर, द टू प्लांट्स अपीयर्ड, इन दो प्लांट्स में हमने क्रॉस करा दिया नेक्स्ट जनरेशन देखने के लिए. दो पेरेंट थे, बेबी में एक सन हो गया और एक वी कैन से द गर्ल और एक बॉय हो गया. इन दोनों में क्रॉस करा सकते हैं? नहीं करा सकते, क्योंकि ये तो ब्रदर और सिस्टर है, ब्रदर एंड सिस्टर्स. सो इसलिए हम कहते हैं कि बिकॉज इन ह्यूमंस कंट्रोल क्रॉसेस आर नॉट पॉसिबल, ठीक है. Because the control crosses are not possible, so that's why we use the separate method of analysis to find out the inheritance pattern of a trait, that is known as the pedigree analysis, ठीक है. pedigree analysis में हमारी फैमिली में अगर किसी में कोई वियर्ड ट्रेट है तो वो हमें पता लग जाता है, ठीक है. और इससे हमें पता लगने से क्या होता है, वी आर एबल टू रेक्टिफाई द प्रॉब्लम एट द बर्थ स्टेज, ठीक है. दैट इज द पेडिग्री एनालिसिस. सपोज करो वन कपल इज देयर,
ठीक है, one couple is there, and on the mother side means in the wife side, if there is her father or her mother was having some deadly disease, means they were having cancer or something, or in the father side also, in the gents or the male side also, husband side also, if they are having some trait in their family, so they know that, they know it very well, ठीक है, because these kind of the information they pass from one generation to the next generation, ठीक है. तो when they are planning a child, so they can find out the probability, they can go to the counselor, and counselor will take out the information from them, and he will analyze their pedigree, and then he will be able to tell the probability of a trait or the disorder which can appear in their child. So that analysis is known as pedigree analysis. What we call that analysis? That is known as the pedigree analysis. Okay, so this pedigree analysis the used to analyze the inheritance of a particular trait is represented in the family tree over the generation. So what is the significance? मैंने आपको बता दिया why the it is a most important tool in the human beings. ह्यूमन बींग में इसलिए इंपॉर्टेंट टूल है बिकॉज कंट्रोल क्रॉसेस ह्यूमन बींग्स में क्या है, पॉसिबल नहीं है. कंट्रोल क्रॉसेस बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है ह्यूमन बींग्स में, ठीक है. नाउ सी हियर इन द ह्यूमन जेनेटिक्स the pedigree study provide a strong tool which is used to trace the inheritance of a special trait, abnormality or the disease. ठीक है, सिंबल्स जो हैं नेक्स्ट पेज में दिए हुए हैं, इसके सिंबल्स के बारे में वी विल डिस्कस अबाउट द सिंबल्स. सी हियर द सिंबल्स आर हियर. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट symbols are there. How to represent the symbols by using the pedigree analysis? Males are represented by the squares, females by this. If the sex of the child we don't know, that is this method is used. Affected diseases, अगर कोई चाइल्ड डिजीज से अफेक्टेड है उसको इस मेथड से या फिर उसको हम ऐसे शो करते हैं इस तरह से. ठीक है, ये चीज़. फिर मेटिंग बिटवीन देम इज नोन एज दिस, एक सिंगल लाइन. टू लाइन्स यू कैन सी हियर, टू लाइन्स आर देयर. टू लाइन्स इज द consanguineous mating. Consanguineous mating means if it is between the relatives. ठीक है, it is between the relatives, but it is not possible in the human in our society. Mostly this is possible in some Muslim families. उनमें क्या होता है, चाचा और ताया, मामा, बुआ, उनके आपस में बच्चों में भी शादियां कर देते हैं. तो उस तरह की मेटिंग के लिए हम क्रॉस करके क्या यूज़ करते हैं, वी यूज़ द डबल लाइन. ठीक है, देन नेक्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर दिस, द पेरेंट आर अबव. ये दोनों पेरेंट है. देखिए ये कौन है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये चिल्ड्रंस हैं. अब नाउ देखिए इन चिल्ड्रन में ये अगर ऐसे सीक्वेंस दी हुई है तो इसमें इन दोनों में से पहला बच्चा इनके कौन सा था, लेफ्ट टू राइट. देखिए तो फर्स्ट चाइल्ड इनके गर्ल थी और दूसरा चाइल्ड जो था वो बॉय था. ठीक है, और अगर दोनों का बच्चा जो था वो क्या था, उसको डिजीज थी तो वो इस तरह से या फिर इस तरह से शो किया होगा आपको. ठीक है, और अगर 5 ऐसे लिखा है सिंपल तो उनको कोई डिजीज नहीं है, अनअफेक्टेड चिल्ड्रंस. ठीक है, तो ये आपका जो है, देखिए आप यहाँ पे देखिए, आप बिल्कुल इसको एग्जांपल से भी हम समझ सकते हैं. यहाँ पे देखिए ये दोनों के बारे में बताया है. यहाँ पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर है, हम स्टडी करेंगे इसको डिटेल में. जस्ट आई वांट टू टेल यू द सिंबल्स. हियर द फीमेल है, मेल है. ठीक है, ये इनके चिल्ड्रंस थे. तो अब देखिए इनके चिल्ड्रंस, ये इनका फर्स्ट चाइल्ड था, ये सेकंड था, ये थर्ड था, ये फोर्थ था और ये फिफ्थ था. तो इधर से इधर को काउंटिंग होगी इनकी हमेशा. ठीक है, तो कई बार पूछा जाता है क्या चीज़, देखिए यहाँ से अगर हम इधर से करेंगे तो पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरी गर्ल है ना. और अगर बोलेंगे दूसरा चाइल्ड क्या है इसका, बॉय है, अफेक्टेड बॉय है. तो क्वेश्चन कई बार आ जाता है व्हाट इज द सेक्स ऑफ द सेकंड चाइल्ड. तो क्वेश्चन समझ रहे हो, व्हाट इज द सेक्स ऑफ द सेकंड चाइल्ड. तो सेकंड चाइल्ड अगर आप इधर से काउंट करोगे तो आप क्या बोलोगे, इट्स ए गर्ल. लेकिन हमने रूल क्या बोलता है, रूल कहता है, रूल सेज वी हैव टू काउंट फ्रॉम दिस साइड. सो सेकंड चाइल्ड इज ए बॉय.
ठीक है, तो इसलिए इसको इम्पोर्टेंट समझना इम्पोर्टेंट है, ठीक है, क्लियर। नाउ व्हाट अबाउट दिस, इसके बारे में क्या कहेंगे, इनका इनसे कोई लिंक है, कोई लिंक नहीं है, क्यों, क्योंकि ये जो है इनका थर्ड चाइल्ड क्या था, इधर से इधर को देखेंगे, थर्ड चाइल्ड वाज द गर्ल and she was married to this person and then the child appeared in them. So when this couple was having the kids, the first child, first, second, third, first child was a boy and that boy was affected, okay. So what we can see here is that woman was not showing the disease but her children were showing the disease, okay. And how many children, the boy was showing the disease, क्लियर। तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इन डिजीज के बारे में। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टूड एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आल्सो फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है इसमें से, अंडरस्टूड। सो गो थ्रू दिस इन ए वेरी डिटेल मैनर, एवरी वन ऑफ यू।